Thank you, Gitika. Thank you for this wonderful introduction and getting us on board on this discussion. So I welcome Puneet ji as well as Mr. Bala Iyer ji from the Geo family in a big way. Today's session is largely going to be discussing elements related to the event industry into the religious, government, and festival or festivities segment in a big way. So without waiting further, I would want to take this up with Sri Bala Iyer ji to make us or give us a clarity about how do you think technology is running closely with the current festivals or temples and the fraternity, and how do you think at Geo it would be a large involvement to take it to the nation and the world largely. Over to you, sir. Thank you, Girish. In fact, let me give you a simple case study in a minute. We recently, during the COVID times, we had the Ganesha festival, which came in, which was one of the first festivals that we experienced once the COVID kicked in and we were all shut indoors. We in Bombay had, tense moments to see what the government was going to tell us. And then finally, they allowed a few pandals of Mumbai to actually conduct the festival, but with a huge amount of restrictions. So I'm saying this because we must remember that despite whatever happens, there is the law and order situation or the political wrapper that we work around with, which decides what can be done, cannot be done. Okay. Now, once the government actually gave permission, we had this team from GSB, Mumbai, which you know is one of the big pandals of Mumbai. They were given permission, but then suddenly they were told that they can have an idol which is not more than five. I mean, I think about 1 feet, 2 feet, or whatever it is. So they had a situation like this. Now, obviously, which would mean that they cannot bring in their iconic idol in the famous place which they always used to do, but instead they just had a digital projection of what they used to do as a backdrop, and they just ended up having a small icon with, I mean, a small idol which was permitted by the government. And in front of the idol itself, they had to create a pond because they would not be allowed to carry the pond idol outside. They had to do the immersion on the spot over there itself. So this is what was permissible by the government. Now, so here is the government trying to tell us how we have to redo the entire festivities just to manage the current situation. This is, of course, thanks to or no thanks to COVID. But having said this, we ended up supporting them by trying to say that, okay, don't worry, irrespective of whatever is happening, we will do live events. We will carry your entire proceedings for the day on a digital platform. So Geo came in, we put in live the fiber over there in that ground in quick time. In fact, I would say within less than 7 days time, we actually managed to lay fiber in the middle of Mumbai. You know where this is, right? This is Bombay. Brilliant. Right? And we managed to overcome all police permissions, etc., whatever is required. We managed to get the fiber in. Of course, the GSB people also helped us with all the connections which was required. The police was kind enough to make sure that we were not disturbed. We got that done. And having got that done, we launched a television channel exclusively for GSB for 5 days. Fantastic. And that channel actually carried whatever was going on. So whether it was the morning aarti or the afternoon puja, or for that matter, the evening aarti, which they did in a splendid form with all diyas across, which was watched not by one or two, but close to about 8 million people in the country, thanks to the channel that Geo put in and pushed it on social media. So this time, the number of people who would have actually visited GSB Pandal physically would have been a fraction of that. Correct. But because of the way we managed to do it on digital platform and with live events, like let's say there was a Shivamani event, there was a Hariharan event and all these kind of stuff that they did. But best part of the story is that if you really want to put your arms around a digital platform, and if the machinery allows you to do so, chances are you can reach all over the country. And these people were not people who are only watching from Mumbai or from the Konkan area of GSB belt, but this is all over the country. In fact, I really wanted to, understand, because we closely work with Geo and the Divinity segment, and Temple Connect has been getting all the possible encouragement from taking these images and these references to people.
आई थिंक I'll move on to पुनीत जी also. पुनीत जी, आप ये बताएं कि आप तो इतने सारे कुंभ मेले में आप गंगा माता में डुबकी लगाते आते जा रहे हो और बहुत सारा पुण्य कमाते जा रहे हो, बट एक बात बताइए कि इवेंट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से और इस प्रकार से, जिस प्रकार से कुंभ मेला इस साल अलग होगा, तो आप क्या करना यहाँ पे चाह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो कन्वीनियंसेस है लोगों तक पहुंचने का, किस प्रकार से आप उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरी जियो टीम का। उन्होंने किस तरीके से इन एक दर्शनों को प्रभु के इजी किया है। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से आप करना चाहेंगे और किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, आज की तारीख में डिजिटल का एक इतना बड़ा रोल आ गया है। एंड फिर हम लोग यही कहेंगे कि हमें थैंक्स नहीं कहना कोविड को, लेकिन हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को कोविड के दौरान समझ पाए। और समझ कैसे पाए कि हम लोगों की रीच इतनी आसान हो गई। मेन एक रीच की बात थी, और हम लोगों तक हर जगह पहुंच नहीं सकते थे, और बगैर पहुंचे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि कोई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए और यहाँ पे आके स्नान करे और स्नान के साथ दर्शन करे। बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीथिंग सो इजी दैट द रीच इज वेरी इजी। रीच हमारी बहुत आसान हो चुकी है सर, हम आसानी से हर जगह पहुंच सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब इस साल कुंभ मेले में जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आएंगे, ठीक है, तो दो प्रकार की चीजें, एक भगवान का दर्शन और दूसरा वहां पे आके उसका जो एक प्रकार से आनंद उठाना चाहिए, वो इस साल कुछ अलग होगा। तो आप ये वर्चुअल कुंभ की बात कर रहे थे, तो उस इवेंट में या उस वर्चुअल कुंभ में किस प्रकार से आप कुछ आधुनिक देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहब, वर्चुअल कुंभ अभी फिर वही बात है कि एक रीच को आसान बना रहा है। आज हर आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो हरिद्वार में आके स्नान कर सके। हर आदमी की हेल्थ अलाउ नहीं करती कि वो हरिद्वार में आके डुबकी लगा सके। हरिद्वार क्या, किसी भी जगह पे जाके डुबकी लगा सके या कुछ भी कर सके। वर्चुअल कुंभ लोगों को आसानी से दर्शन करा रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अगर 3 करोड़ की आबादी हरिद्वार में स्नान करने आ रही है, तो वर्चुअल कुंभ 60 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है। क्या बात है। आज वो दूरियां खत्म हो रही हैं। आज हम बात करें जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, एक आदमी असमर्थ है एक पर्टिकुलर जगह तक आने में, लेकिन वो मां गंगा का वो एहसास ले सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये वर्चुअल, इनफैक्ट वही मैं इनफैक्ट अय्यर सर को पूछना चाहूंगा कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी है, दिस इवेंट मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी दैट वी हैव across the nation and the world, I think they have taken a lot of learning from us, and Jio has been an integral part of giving them that support. How do we, through this platform, speak to the event managers of the world and the country, where involvement with technology would help them and help the kind of products that they have to offer that could go to maximum people? So how can this integration happen? What is your input for this eventing fraternity from this vast experience? As well, what is the kind of possible events which can be supported in temples, in government organizations and so on under your platform? सर ऐसा ना कि आपने जो अभी सवाल पूछा है कि इवेंट मैनेजर का, आई मीन ऑब्वियसली दीज आर फैसिलिटेटर्स। ये लोग तो अभी यहाँ पे कुंभ मेला अभी होने जा रहा है, अब उसको एक अच्छी तरीके से दोनों लोग, एक तो पिलग्रिम्स है और दूसरा है कि जो वहाँ के जो स्टेट होम मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं, वो लोग हैं जो मेक श्योर कर रहे हैं कि जितने पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो। और इसके वजह से if they are planning to actually give us all the support locally, और ये तीसरा है कि हम इंफॉर्मेशन लोगों को कैसे पहुंचाएं। अब जैसे कि अभी हमारे पास तो प्लेटफॉर्म्स और एप्स इतने सारे हैं, और यदि मैं तमिलनाडु से एक व्यक्ति आना चाहता हूँ हरिद्वार में, और मुझे ये पहले से मुझे बुकिंग करना है या मुझे पहले से ही इसका डिटेल समझना है कि मुझे कौन से दिन में कौन सा घाट खुला हुआ है, और यदि मुझे मान लो कि एक बुकिंग करना है, यदि वर्चुअल है तो एक अलग कहानी है,
लेकिन यदि फिजिकली मैं आ सकता हूँ तो मैं पहले से अपना स्लॉट बुकिंग कर दिया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, मैं जाके अपनी डुबकी मार के बाहर आ रहा हूँ वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन यह है कि जैसा अभी आज की तारीख पे यदि आप सिद्धिविनायक मंदिर है आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि भैया मंदिर तो खुल गया लेकिन वहां पे कोई डिवोटी है ही नहीं। अच्छा, अब इतना भी आप लोग जाके डिजिटल मत करो, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि अभी वहां पे एक नॉर्मल जो सिद्धिविनायक मंदिर में यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिन चले जाते हैं, आप तो जानते ही हैं, बॉम्बे का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ये मंदिर में आप जाओगे तो किसी I में think किसी दिन आप चले जाओ, कम से कम एक 2-4 धक्के तो मिलते ही मिलते थे 100%. मंदिर के अंदर के बाहर आने में। अब ऐसा कर दिया इन्होंने एकदम कन्वेयर बेल्ट या सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कि लगता नहीं है कि हम लोग मंदिर जाके आए। और यह है कि इतनी दूरी से हम भगवान को देख रहे हैं, जो माथा टेकने का जो आनंद है, भगवान के सामने जाके जो एक प्रसाद लेने का आनंद है या कुछ प्रसाद चढ़ाने का आनंद है, वो सब चला गया। और यदि हम इसी तरह से डिजिटल सब कुछ करते रहें तो कुछ दिनों के बाद लोग शायद अभी मंदिर में जाना भी बंद कर देंगे। True, true. क्योंकि ये एक और बात है, आई मीन आई डोंट वांट टू टेक ऑन अ पॉलिटिकल स्टैंड हियर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए ये सिर्फ हम लोग कुछ कुछ मंदिरों में कर रहे हैं कि ज्येष्ठ नागरिक को अंदर नहीं करेंगे। अरे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, ये क्या सिर्फ टेम्पल्स के लिए ऐसा वाला रूल है? ये भी तो आपको देखना है। तो और ये करते करते हमने क्या है कि अभी ज्यादा हमारे ही लोगों को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, बाकी अच्छा, सब लोग तो सब जगह अच्छी तरह से जा रहे हैं। तो नहीं, अभी अगर हम टेम्पल्स या टेम्पल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि अभी आने वाले समय में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे इस साल हमने फेस्टिवल्स या फेस्टिविटीज एक लॉकडाउन में सेलिब्रेट किए हैं, बट आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे ये जो फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, इन्हें टेक्नोलॉजी हेल्प तो लगेगा पर ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन भी लगेगा, उसके बिना तो वो हो नहीं पाएगा। तो आज अगर इतना बड़ा अगर कुंभ मेले की अगर बात होती है या आज इतने बड़े डिजिटलाइजेशन की बात होती है, तो इस माध्यम से व्हाट इज दैट वी कैन अपील टू द थ्रू दिस कांग्रेगेशन, व्हाट कैन बी द अपील where areas can be supported, and what are the kind of alignments can be done between government, organizations and corporates like yourself, and on grassroots event managers. What is your feeler, Mr. Puneet, as well as then Bala sir? देखो सर, टेक्नोलॉजी वाइज जो अगर हम बात करें आज, अगर आप सिर्फ कुंभ मेले की बात करते हो तो ये एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा फेयर है। और पहले ये आदमी सिर्फ अपनी आंखों से जाके देखता था और देखने के बाद वो अपने कुछ लोगों तक इसे पहुंचा देता था। लेकिन अब हम बात करें कि वर्चुअल कुंभ की या लाइव स्ट्रीमिंग की या किसी चीज का, हर आदमी फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं आदमी जुड़ा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें इतना हेल्प कर रही है कि आज के यूथ से लेके हमारी बुजुर्गों से लेके हर प्रकार के समाज के लोगों को इस सनातन धर्म से जोड़ने की ये बहुत बड़ी हमारी हेल्प है। तो ये टेक्नोलॉजी का खाली आप ये मत सोचिए कि ये हम वर्चुअली से ले जा रहे हैं या कुछ ले जा रहे हैं। देखो ये अब समय इतना खराब आया है, हर आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता, ट्रैवल एक्सपेंसिव भी हो गया है क्योंकि आप पीसीआर टेस्टिंग की रिपोर्ट्स ले रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो आज की तारीख में हम ये कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमें बड़ा हेल्प कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब हम अपने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो लाइव इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं इसी टेक्नोलॉजी से वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है। तो हम ये कहेंगे कि प्रचार प्रसार बहुत इजी हो रखा है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आई थिंक एक भाग है जहां पे टेम्पल कनेक्ट अपने ओर से इन सारी चीजों को डिजिटलाइज और डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, बट इसी के साथ में आज जो इवेंटिंग फ्रेटर्निटी है, जैसे कि गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं या बहुत बड़े पैमाने पे मंदिरों में जैसे पंढरपुर की यात्रा हुई, या जैसे हम कुंभ मेला की बात कर रहे हैं, या जो अलग अलग स्टेट्स में वहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से आपके हिसाब से इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें कोई बदलाव आ सकता है? क्या वो एग्रेसिवली इस इंडस्ट्री में या इस गवर्नमेंट इवेंट्स में या टेम्पल इवेंट्स में भाग ले रहे हैं,
या ये स्कोप है कि ये अनटैप्ड इंडस्ट्री है और इसमें स्कोप है मगर वो लोग भाग नहीं ले रहे हैं? क्या आपका ओपिनियन हो सकता है सर? सो मिस्टर अय्यर, इफ यू कैन गिव अस अ फ्लेवर अबाउट इट. सर, जैसा अभी पुनीत साहब ने कहा कि भैया हम लोग तो टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर, टेक्नोलॉजी के जरिए सारा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है. टेक्नोलॉजी तो वो चीज कर पाएगी कि जो आप लोग को सुविधा और ज्यादा आसानी से कर दें. जी जी. अब जैसे पुनीत सर ने आपने सही कहा कि मान लो कि ज्येष्ठ नागरिक है, वो मंदिर नहीं आ पा रहा है, वो बेचारा मान लो कि अपने घर पे टीवी पे या मोबाइल पे वगैरह दर्शन देख लिया, आज की तारीख के लिए तो उसने अपना मन ठीक कर लिया. लेकिन मुझे बताइए, सच बात, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि यदि मैं किसी मंदिर जाता, क्या मेरे माँ बाप को मैं मंदिर के बाहर खड़ा रख के मैं अंदर जाके माथा टेक के आता? ये कौन सा धर्म सिखाता है? करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल सेड. हम लोग तो माता पिता गुरु देवम बोलने वाले आदमी लोग हैं. हम तो पहले माता पिता के पैर छुएंगे, जाके मंदिर में बाद में जाएंगे ना. तो ये हमने ये डिजिटल माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इवेंट मैनेजर्स जो भी करा रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली फैसिलिटेट, और हम भी चाहते हैं कि वो लोग हम करें. तो वी आर ऑल्सो द पीपल हु आर कैरिंग द कंटेंट विच पीपल लाइक यू गिरीश आर ब्रिंगिंग टू अस फ्रॉम वेरियस सच इवेंट्स. ये हम लोग कैरियर है, हम लोग इसका फैसिलिटेशन हम लोग जरूर करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे. कोने कोने में इंडिया में जाके बच्चे बच्चे के हाथ में हम लोग जाके, हर मोबाइल हो या घर के टीवी हो, उसमें हम लोग जाके दे सकते हैं. ये बड़ा आसानी से करें. हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों को कि भैया देखो यहाँ पर है, ये इवेंट है, इसका इस तरह से टिकट बुकिंग करना चाहिए, आपको ये लोगों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए. यदि आपका जैसा ऐप को आपने डाउनलोड करना चाहिए ताकि आपका आरोग्य सेतु का जैसा ऐप है कि आपका पूरा डिटेल्स वगैरह जो है आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो सारा डिटेल हम भेज देंगे और हम हर व्यक्ति के हाथ में दिला देंगे ताकि कोई व्यक्ति गलत ना करे. क्योंकि जो मैं ये देख चुका हूँ कि पिछले जो कुंभ वगैरह में गए थे हम, तो हर इंसान ये चाहता है कि वो सही रास्ते से चले, स्पेशली ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पे कुंभ है. आपने देखा ये वाला पिछले वाला जो कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, इट वाज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कुंभ मेला दैट आई हैव एवर सीन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. राइट. अभी आपने भले इसमें ये भी मैं देखा हूँ कि देर आर सर्टेन पीपल, जैसा इवेंट मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी यू हैड समबडी लाइक अ लिप्टन जो हिंदुस्तान लीवर की तरफ से उन्होंने वो एक मशीन लगाई थी वहां पे कि आप जितने भी कूड़ा देखा एक कवर में डाल के उसने जाके मशीन में डाल दिया, वो मशीन ने अपने आप को एक प्याला चाय पिला दिया. क्या बात है, क्या बात है ना, सिंपल सी बात है. लेकिन क्या है कि देखो हर इंसान तो अपना लालची है, मैं कुछ काम करूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे को कुछ मिल जाए. इंसेंटिवाइजेशन इम्पोर्टेंट. हाँ, ये तो एक सिंपल मॉडल है. आप तो दिन रात जो लोग वहां पे घूम रहे हैं देख रहे हैं कि कोई किसी ने कुछ कूड़ा डाला, एक एक बैग में थैले में डाल दिया, वो जाके बैग मशीन में डाल दी, मशीन अपने आप चाय पिला दिया, ये भी खुश वो भी खुश. ये इस तरह से जो इवेंट मैनेजमेंट का जो तरीका है ना, इफ यू मेक इट इन सच ए वे दैट इट इज इजी फॉर मी टू फॉलो, मेरे लैंग्वेज में मेरे से बात करे, और तीसरी बात है कि भैया ये मेरे लिए आसानी से मुझे काम करवाए तो मैं फॉलो करूंगा. लेकिन आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि मुझे पल्ले नहीं आए तो मैं तो फॉलो नहीं करूंगा. मुझे पता ही नहीं है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स रूल बना दिया आपने, तो मैं तो भैया मैं तो पीएचडी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो ऑर्डिनरी इंसान हूँ. तो ये जो तरीका है, हाउ डू आई मेक इट सिंपल, हाउ डू आई कम्युनिकेट टू पीपल, हाउ डू आई गिव देम द कंटेंट. फिर आखिरी में आता है आपका कॉमर्स वाला पार्ट कि यदि मुझे कोई पेमेंट करना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर, अभी आप बताइए कुंभ मेला में हम जाते हैं, कहाँ से क्रेडिट कार्ड और पैसे लेके घूमते रहेंगे. मैं तो चाहता हूँ डिज्नी वर्ल्ड की तरह हम लोग कर दें अपना. इस टाइम जो कुंभ मेला आ रहा है, मैं पहले से जाके मैं उनको अपना डिटेल बता देता हूँ, भैया मेरा अंगूठा जहाँ लग गया मेरा 10 रुपया कटा लो यार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पीसफुली स्नान करने दीजिए. क्या बात है, क्या बात है. सो इनफैक्ट ये एक बात यही है ना कि जहाँ पे आई थिंक जियो प्लेज अ लार्जर रोल, कि अगर वहां पे इक्विपमेंट गैजेट्स या वहां पे ये पूरा तामझाम है, मगर अगर वहां पे टेक्नोलॉजी या वहां पे बैंडविड्थ या जो आप बोलते हो कि जो कनेक्टिविटी है वो अगर नहीं है, तो आई थिंक कितना भी हम ग्रास रूट लेवल पे ये एक्टिवेट कर लें, बट अगर फाइबर नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है, तो आई थिंक देयर विल बी अ लिमिटेशन. So I think it's a learning for us from this point of view. Ki it's not only about being ready at the grassroots level to deliver something, but the needed infrastructure is also very important in this scenario. And when I look at it from a personal point of view, I must have visited more than 3,500 temples in the past 15 odd years.
every temple has their own format, or every temple has their own want to incorporate that in their own specific pattern. I'm sure both you gentlemen will agree to the fact that हर मंदिर का एक अपना एक नियम होता है, और उसे ब्रेक करने में जितना समय लगता है या उसको ब्रेक थ्रू मिलने में जितना समय लगता है, that takes a larger time. So one last question to both of you on this platform is that one thing that you want to appeal, or one thing that you want to communicate to the world through this event, to the tourism ministers, to the decision makers, at the same time the event management fraternity, what is that one thing that we should come together and make it happen in the coming Kumbh Mela and the events to come with temples and the government events? Haji. So Ayerji, if you can just throw some light, and followed by Puniji. Yes, sir. तो मैं तो जैसा अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था, मैं तो ये चाहूंगा कि उसको जितना सिंपल और हैसल फ्री कर दें लोगों के लिए, उतना ज्यादा हमारा पिलग्रिम्स जो आएंगे वहां पे वो डिसिप्लिन रहेंगे, और वो अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बिल्कुल फॉलो करके कायम रहेंगे, और अपना देश का नाम भी बचाएंगे। वो खुद भी तो खुश रहेंगे और बाकी लोगों को भी खुश रहने देंगे। लेकिन यदि आपने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि हर आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ चोरी करने के लिए लग जाता है, फिर तो पूरा गड़बड़ होने लग जाता है। यदि हम उस माहौल में यदि ऐसा सिचुएशन कर दें कि कुंभ में आते क्यों हैं हम लोग, वहां पे एक अलग काम से आ रहे हैं, सही बात है, वो मकसद यदि हम सभी लोगों के लिए कर दें, और जो आदमी नहीं कर पा रहा उसको भी हम अपने कंधों पे ले जाके उसको करवा दें, तो शायद हम भी उसका थोड़ा बहुत तो पुण्य हम भी कमा लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर दो ताकि ये लोगों के लिए आसान कर दें। हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये जो इवेंट मैनेजर्स है या जो गवर्नमेंट है, उनके लिए सिंप्लीफाई करते हैं और पिलग्रिम्स के लिए कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। उसको जरा रिवर्स कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट। पुनीत जी, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आपने इतने सारे कुंभ मेलों में ग्रास रूट पे बहुत सारी मेहनत की है, एज माई स्पेशलिस्ट, एज एन इवेंट पर्सन, एज वेल एज लाइजनिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ग्रास रूट। तो आपका क्या एक वन स्टॉप ओपिनियन है इस इनिशिएटिव के बारे में? वन स्टॉप ओपिनियन के बारे में कहें, देखिए, आस्था का एक सैलाब है और अपनी आत्मा का ये एक स्नान है। और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो श्रद्धालु आते हैं वो बड़े ही भावनात्मक तरीके से आते हैं, क्योंकि ठंड भी होती है और सब कुछ होती है। जो अय्यर सर ने कहा है वही बात सही है, इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बहुत ही साधारण तरीके से रखा जाए और हर आदमी को एक आम आदमी बना के अच्छे से स्नान कराया जाए, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का अच्छे से प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा इसमें दोनों जन को, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ये इन सारे इवेंट्स में अलग अलग फॉर्मेट में आता है, जहां पे एक कॉर्पोरेट इंडिकेशन होती है। जैसे कि अगर हमने देखा था एक टेलीकॉम ब्रांड ने पिछले कुंभ मेले में ये जो हेड मफलर होते हैं, या वो जो हेड गेयर एक क्रिएट किया था जहां से ठंड ना लगे, और उसके साथ ही साथ उसका उन पे ब्रांडिंग भी था, और ओम नमः शिवाय या कोई भी जप था उसका एक उसमें साइनेज देगा। अभी होता क्या है कि इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग कम्युनिटी इन सारे कॉर्पोरेट्स के साथ डील करती है। एक बड़ा कॉर्पोरेट तो यहाँ पे अय्यर सर के माध्यम से ऑलरेडी है ही। तो इन सारी चीजों को अगर ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के हिसाब से और मार्केटिंग के हिसाब से क्या पहुंचाया योग्य रीत्या जा रहा है, या डू यू थिंक देयर इज मच मोर टू इट जो किया जा सकता है, बट कोई गैप है जिसके चलते वो हो नहीं पा रहा है? पुनीत जी, कॉर्पोरेट्स बड़े पैमाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे, या उसके कम्युनिकेशन में कोई गैप है आपके हिसाब से? देखिए सर, कॉर्पोरेट्स के कम्युनिकेशन में ही गैप है। कॉर्पोरेट्स राइट चैनल से गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, और जो आपने कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने टी शर्ट्स या फिर कानों में लगाने वाली चीजों को जिस तरह से अपनी ब्रांडिंग को किया, अब नॉर्मली देखा जाए वो तो उनकी ब्रांडिंग ही है, वो लोग अपनी ब्रांडिंग ही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो राइट चैनल से चलें और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, तो एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए नेचुरली
काफी हेल्पफुल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो आपने कॉरपोरेट्स की बात की, उन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुंभ मेले का असली महत्व को बताना, और वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों के अंदर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के द्वारा और उसके बाद प्रमोशनल कंटेंट्स के द्वारा इस तरीके से इस कुंभ मेले का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को ये जानने में आसानी रहे कि ये सनातन धर्म का इतना बड़ा मेला होता क्यों है। I think, sir, as a corporate, Iyer Saab, what do you feel? Is there what Puniji was saying, that there is a gap in reaching out from the branding communication point of view, because there is humongous scope that the corporate world can offer to such religious festivities. So, do you think there is a mismatch, or what is your one-liner for that, sir? नहीं, हमारा तो ये है कि देखो CSR की तरफ से या कंपनी का जो अभी हम लोग मान लो कि जैसा आपने फाइबर मांगा है, तो अभी यदि फाइबर वहां पे डाल के देना है, तो हमारे को यदि आपने एक ऐसा वेंडर की तरह ट्रीट करे कि भैया आपने आए यहाँ पे फाइबर वहां लगाओ, बस वहां पे लगा दिया, आपका फाइबर चालू हो गया, चलो बड़े भैया अभी आप निकलो यहाँ से। अच्छी बात। और दूसरा है कि आपने मुझे एक पार्टनर की तरह बुला लिया अंदर कि भैया हमें एक कुंभ चलाना है। जैसे आपके घर में यदि कोई शादी होती है और आपने हलवाई को बुला लिया और उसको बोला भैया हलवाई बना दे, चल अपना बिस्तर बोरी बांध निकल जा बाहर, तो वो जो बनाएगा आपके लिए, आपको पता है क्या बना के देगा। वो वही तरीका होता है कॉर्पोरेट्स आज की तारीख पे, जो आज की तारीख पे बना के जाते हैं वो लोग ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट्स को जब बुलाते हैं अंदर, यू ट्रीट देम लाइक अ वेंडर, एंड देन इट इज अ मैटर ऑफ सेइंग दैट भैया मैं अपना काम कर दिया, बाकी आदमी करना है नहीं करना है मुझे पता नहीं, मुझे इतना ही करना है। बट द मोमेंट यू टेल हिम यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस लाइक अ पार्टनर, मेकिंग श्योर कि जो आपने दिया है इसको कंप्लीटली चलाना है हमको, तो मैं एक ओनरशिप लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये कुंभ मेरा कुंभ है, हम साथ में मिलके करेंगे काम। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि विद द बैकग्राउंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एज अ होल, हु इज द इंटरफेस बिटवीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड and such events, I think the event management fraternity should take a larger role in events which are related to religion, related to festivities, related to yatras or celebrations in various states. बहुत सारा budget है, बहुत सारा एक प्रकार से requirement भी है. Right connect as well as right understanding of these opportunities is very important. And as we sum this discussion up, what we gather out of this and gather out of this discussion and the initiative is that there is humongous scope in the religious or the festivals or the temple sector. Looking at Kumbh Mela or looking at Pandharpur Wari or looking at larger temples like Siddhivinayak, Tirupati and so on, there is a huge want of right segment of events, right segment of motivation from the corporate world, as well as for people who are common man, जैसे आप और हम हैं, सारे लोगों को फायदा इससे या ज्यादा से ज्यादा convenience मिले, is what I look at it as a whole. And if there is any specific pointer that in the last statement, if you all would want to make one line statement where you would want to sum it up and close this wonderful discussion, I leave it to Puneet ji and then Iyer Saab, and then we can wind this up for the benefit of people to understand the most out of this and take it further. Please. हाँ जी पुनीत जी. जय श्री गंगा जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भारत माता की जय. क्या बात है, क्या मैं कहूँगा कि यदि किसी को पुनीत जी जैसा कोई आइकॉन मिल जाए कि जितने भी कुंभ में जाके मेरे को स्नान करने का एक अवसर मिल जाए, यदि ऐसा कोई आइकॉन मिल जाए और यदि मैं वाकई में करना चाहता हूँ आगे से, मुझे पता है कि मैं किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाऊं या किसी कंपनी के साथ भी जुड़ जाऊं, लेकिन कोई तरीका मुझे पता नहीं है जिससे कि मुझे एक गारंटी मिल जाए, या एक जैसा मैं अभी म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं पैसा, शायद मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ ना हो तो मेरा कम से कम कुछ तो दिन निकल जाएंगे, वैसा कोई तरीका निकालिए भाई साहब आप लोग, जिससे कि मुझे पता है कि मैं आपके साथ या कुछ तो मैं आज की तारीख में करूं और मैं टेम्पल कनेक्ट के जरिए या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए मैं हर साल पुनीत जी की तरह जाके हर कुंभ में जाके स्नान कर सकूं.
Jai Shri Gange. जय श्री गंगा जी। क्या बात है. So with that opinion and with that wide insight from both these senior people from the industry, I think we can sum it up with the fact of saying that there is huge opportunity. Convenience for all is the key. At the same time, people like Mr. Iyer from Jio and Puniji from the Kumbh Mela coordination, I think we putting all our efforts together and opening up these opportunities for the event management and the media community as a whole. So I thank you both for joining in and making this solid point that हम लोग available हैं support करने के लिए और मिलजुल के जिसे बड़ा कर सकते हैं उसे किया जाएगा. So I think with that note, I thank you all for this meetup, and I look forward that it benefits the eventing and the media fraternity and this congregation in a big way. Thanks a lot. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत।